My dear little chumps, at first, wish you all a very happy, handsome, hilarious, sumptuous, sonorous, musical, chocolatey, and ice creamish good morning. Hope you all are hale and hearty. You all are very healthy. You all are in your humor. आप सब लोग सानंद हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं. You are devoting yourself in mischiefs also. You are doing this or that also. You might be chewing the mind of your parents also during this lockdown. You might be studying also. आप खेल भी रहे होंगे, बदमाशी भी कर रहे होंगे, उछल कूद भी कर रहे होंगे, गार्जियंस के दिमाग भी चबा रहे होंगे, दिमाग भी खा रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ न कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे. Now you must have recognized me. आपने मुझे पहचान ही लिया होगा. I am your English grammar. मैं आपका अपना दोस्त. I am your friend. I am your old friend, faithful friend, sincere friend. मैं आपका दोस्त हूँ, अपना दोस्त हूँ, पुराना दोस्त हूँ. I am your fast friend and I am fond of you people. And I know you too are fond of me. I am your fan. And I know you are my cooler. मैं आपका फैन हूँ, मतलब मैं आपका दीवाना हूँ. And I know you are also my fan. You go on searching for me. आप मुझे ढूंढते भी हैं, आप मुझे खोजते हैं. You like to spend your time with me. And so do I. आप मेरे साथ समय बिताना पसंद करते हैं और वही स्थिति मेरी है. मैं भी आपके साथ अपना समय बिताना, अपना समय व्यतीत करना चाहता हूं. मुझे अच्छा लगता है. Whenever I am with you, I feel very happy. I feel relaxed. I feel enthusiasm in myself. अपने आप में मैं उत्साहित महसूस करता हूं. Because you are so energetic that you give energy to others. You energize me. Your presence energizes me. Whenever I am with you, I feel something extraordinary going inside me. मुझे लगता है कि मेरे भीतर कुछ अलग हो रहा है. So dear chumps, dear small kids, may God bless you all. May you be kind. May you be man first. May all of your good desires be fulfilled. May you be helpful to all. May you be kind and considerate to one and all. May you provide your helping hands to the needy. आप आगे बढ़ें,
सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण हों, आप दयाशील हों, भावप्रवण हों। इन्हीं कामनाओं के साथ नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू to some of your friends. Dear friends, as I have described or as I have told you through my previous videos, that English grammar has been divided into 5 parts, 5 groups: orthography, etymology, syntax, punctuation, prosody. And I have elaborately made you know these departments. I have described the functions of these departments to you people. मैंने उनके सारे फंक्शन को भी आपको बताया, वो क्या करते हैं. What things we find in each department. ऑर्थोग्राफी में क्या मिलता है, what we get there. When we knock at the door of etymology, and when the door is opened, what we find there. जब हम etymology के डोर पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुलता है, तो हमें क्या मिलता है वहाँ पर. We get words there. At the home of syntax, when we visit syntax, as you visit your friends, जब आप अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं, not at this time, but whenever earlier you used to visit your friends, वहाँ आप क्या पाते थे? Your friends, his parents, chairs, tables, fan, TV, fridge, ब्रेकफास्ट, यानी खाने पीने के सामान, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको वहां दिखती थी. When you visit syntax, you will meet a friend of yours, that is sentence. वहां आपको सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस साहब मिलेंगे आपको वहां. When you visit the home of punctuation, जब punctuation है, आप घर जाते हैं, there you find punctuation marks, different punctuation marks are there. And prosody, when we reach to prosody, when we knock its door and the door is opened, we find rhyme, music, rhythm, etc. there. In the previous video, I had discussed orthography. ऑर्थोग्राफी के बारे में बातचीत हो गई थी विस्तार से, और हम पहुंच गए थे, हम चल पड़े थे इटिमोलॉजी के घर पर. At the door of etymology, orthography, and after orthography, etymology comes etymology. Because in orthography we get words, we get letters, we get akshars, and in etymology we meet with words. etymology में हमको शब्दों से हमारी मुलाकात होती है, शब्दों से हमारी भेंट होती है, शब्दों से हमारा साक्षात्कार होता है. हम शब्दों से मिलते हैं, जुलते हैं, हिलते हैं, मिलते हैं. हम शब्दों के साथ गाते हैं, नाचते हैं. हम शब्दों के साथ मिलके कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं शब्दों के साथ मिलके. एंड यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल. आपको तो पता ही है बिफोर हैंड, पहले से ही, कि वर्ड्स आर मेड ऑफ लेटर्स.
ये जो शब्द है ना, ये शब्द वर्णों से बनते हैं, अक्षरों से के मिलने से बनते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज ए वर्ड। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स is a word. NEP, nep is not a word. PEN, pen is a word. GEG, it is not a word. But when we say EGG, it becomes a word. When we say NAF, it is not a word. But the moment you say, या we say, या anyone says FAN, it becomes fan. Fan means पंखा. It gives you the complete meaning. It becomes a word. ये शब्द हो जाता है। तो जो वर्णों का यानी अक्षरों का जो सार्थक समूह होगा फ्रेंड्स, वही शब्द कहलाएगा। अब वर्ड्स आर ऑफ 8 काइंड्स। शब्द जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। 8 प्रकार के शब्द, 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर। एंड दे हैव बीन डिवाइडेड into a class, into a group, you can say, according to their function, according to their work, and it is known as parts of speech. आपने जरूर नाम सुना है इसका, parts of speech का। You must have heard the name, that is parts of speech. Yes, मैं जानता हूं चुन्नू मुन्नू, you have heard. Yeah, Tulya, I know it. Yes, Utkars, I know you also know. Yeah, Aimanyu, yeah, you're right. So, parts of speech, class. On the whole, all are words. अब सपोज कि हम इसको ऐसे बताते हैं आपको, ऑल ऑफ यू आर द लवर्स ऑफ स्वीट्स। मिठाइयाँ सबको पसंद है। यस, या मैं जानता हूँ, आई नो, आई ऑल्सो लव स्वीट्स। मुझे भी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसलिए आप मुझे पसंद है, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक स्वीट्स। तो when you visit a sweet shop, there you find sweets. वहां आपको मिठाइयां मिलती हैं। वो मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप, यानी वहां जितनी भी चीजें हैं, समोसास को छोड़ के, नमकीन को छोड़ के, साल्टी आइटम्स को छोड़ दीजिए, तो वो सब क्या है? स्वीट्स है, मिठाइयां हैं। बट ईच स्वीट हैज इट्स ओन टेस्ट एंड नेम। हर मिठाई का अपना नाम होता है, उसका अपना स्वाद होता है, कलर भी होता है, शेप भी उसका अपना होता है। बर्फी इज डिफरेंट फ्रॉम पेड़ा, कच्चा रसगुल्ला इज डिफरेंट फ्रॉम पका हुआ रसगुल्ला, जलेबी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बालूशाही, एंड बालूशाही इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क केक। लेकिन हैं तो सब मिठाइयां ही ना, दे ऑल आर स्वीट्स। अब आदमी में आइए, मान लीजिए वी ऑल आर मेन, हम लोग सब क्या हैं? आदमी हैं भैया। बट वी हैव गॉट डिफरेंट नेम्स। वी आर नोन
थ्रू आवर वर्क्स आल्सो। हम लोगों को हमारे काम से जाना जाता है। इट इज आवर वर्क, इट इज आवर वर्क, और इट इज द वर्क वी डू विच डिवाइड्स अस इंटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो खेलता है, वन हु प्लेस इज ए प्लेयर, आप जानते हैं, उसको हम खिलाड़ी कहते हैं। जो सब्जियां बेचता है, मान लीजिए, वन हु सेल्स वेजिटेबल इज नोन एज ग्रीन ग्रोसर। आप सबको कहां कहते हैं ग्रीन ग्रोसर है? इफ योर फादर सर्व्स द पेशेंट, इफ योर फादर क्योर्स द पेशेंट, आपके पिता सपोज कीजिए मरीजों को क्योर करते हैं, उनका इलाज करते हैं, इफ ही ट्रीट्स द पेशेंट, तो आप कहां कहते हैं कि माय फादर इज ए ग्रीन ग्रोसर? आप तो यह कहते हैं कि माय फादर इज ए डॉक्टर। तो क्या जो ग्रीन ग्रोसर है, ही टू हैज 2 eyes, 2 holes in one nose, 2 hands, 2 legs, and your father too has the same. He is also a man, your father is also a man, I am also a man. A person who teaches is a teacher is also a man. What is the difference? From where these differences have come? एक अंतर कहां से आया? It is because of the work that particular person is doing. ये अंतर आया वहां से, कहां से भैया? उसके काम के नेचर से। जो काम वो कर रहा है, उस काम के से उसको जाना जा रहा है। ही इज नोन बाय द वर्क ही इज डूइंग, या बाय द वर्क ही डज। रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा पुलर हो गया, बस चला रहा है तो बस ड्राइवर है, टैक्सी चला रहा है तो टैक्सी ड्राइवर है, लिख रहा है कुछ तो राइटर हो गया, रोगी का इलाज कर रहा है तो डॉक्टर हो गया, सब्जी बेच रहा है तो ग्रीन ग्रोसर हो गया, लोहा का काम कर रहा है मान लीजिए तो हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ है, वो लोहार है। ज्वेलरी सोने का काम करता है तो हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ है, वो सुनार हो गया। खेल में भाग ले रहा है, खेलता है तो खिलाड़ी हो गया, प्लेयर हो गया। लेकिन है वो आदमी। तो हियर वर्ड्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, वर्ड्स प्ले डिफरेंट रोल्स, वर्ड्स डू डिफरेंट टास्क, डिफरेंट वर्क। शब्द भी जो है ना अलग अलग काम करते हैं। अब हम एक टीचर को आप कह दीजिए, एक दे दीजिए इंजेक्शन, जनरली कहिए ये लगा दो एक पेशेंट को, वो नहीं कर पाएगा, जनरली नहीं कर पाएगा। ए टीचर कैनॉट ऑपरेट, ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ही कांट बी ए सर्जन, सर्जन कहते हैं जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, उसको हम सर्जन कहते हैं, सर्जरी जो करता है। अब दे दीजिए, अब हम दे दीजिए उस लेखक को, उस राइटर को, उस टीचर को, ले जाओ इस पेशेंट को ऑपरेशन कर दो, कर देगा ऑपरेशन। एंड व्हाट विल हैपन, क्या होगा? चला जाएगा वो व्यक्ति कहां? ऊपर, वहां जहां से कोई लौट के नहीं आता है। ही विल डाई, मर जाएगा बेचारा। आप दे दीजिए लोहार को कि इस सोने का हम रिंग बना दीजिए, वो पीट पीट के बर्बाद कर देगा उसको। मोची जो आपका के चप्पल सी देता है, आपके जूते में पॉलिश कर देता है, कितना बड़ा काम करता है बताइए। जो चप्पल आपका टूट गया, पहनने में दिक्कत हो रही है, आप उसको नहीं पहन पा रहे हैं, उस तुरंत उसको ठीक कर देता है। सी द मैजिक ऑफ हिज हैंड्स, क्या जादू है उसके हाथों में। व्हाट ए ग्रेट मैन इज ही, कितना बड़ा आदमी है वो, कितना भला आदमी है वो। अब आपके पापा मान लीजिए इंजीनियर हैं, उनको कहिए पापा मैं चप्पल सी दीजिए,
विल ही बी एबल टू डू इट, क्या कर पाएंगे वो? नहीं कर पाएंगे। तो शब्द भी ऐसे ही हैं फ्रेंड्स, सबके अलग अलग काम हैं, सबका फंक्शन अलग अलग है, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और उनको उनके काम के आधार पर वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और वर्क, शब्दों को उनके काम के आधार पर, वर्ड्स on the basis of their function have been divided into 8 groups known 8 class known as parts of speech। शब्दों को उनके काम के आधार पर, उनके वर्क के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर, जो काम वो करते हैं उस आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, 8 क्लासेस में बांट दिया गया है उनको। दे आर डिवाइडेड इंटू 8 क्लासेस एंड दैट क्लास, वो जो 8 शब्दों का जो क्लास है, इट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, PARTS, पार्ट्स, OF ऑफ या ऑफ, स्पीच SPEECH, पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 क्लासेस, यानी वर्ड्स आर 8 इन नंबर। विचार दे कौन कौन है? देखिए आज मैं आपको मिलाऊंगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑल टू 8 फ्रेंड्स। 8 दोस्त लोगों से आपको आज मिलना है, दोस्ती आपकी होगी 8 फ्रेंड्स से, 8 फ्रेंड्स। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। कितने हो गए? हाउ मेनी? 5। कितने बच गए? 3। यस, वेरी गुड। 8 - 5 3। बहुत सुंदर। यू आर इंटेलिजेंट पीपल, ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। तो 5 हो गए। छठा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। 7वां क्या हो गया? कंजंक्शन। और 8वां है भैया इंटरजेक्शन। इंटरजंक्शन नहीं, इंटरजेक्शन। इट इज नॉट कंजंक्शन, इट इज कंजंक्शन, नॉट कंजक्शन। इट इज इंटरजेक्शन, नॉट इंटरजंक्शन। एक बार फिर से, आई शुड रिपीट इट फॉर यू। आप भी बोलिएगा मेरे साथ साथ। ऑल ऑफ यू, वी आर फ्रेंड्स, वी विल लिव टुगेदर, we will laugh together, we will eat together, we will drink together, we will sleep together। साथ साथ हंसेंगे, बोलेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं, हम लोग दोस्त हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब काम के आधार पर देख लीजिए भैया। The work which is performed by noun is not performed by adjective। जो काम नाउन करता है वह काम एडजेक्टिव नहीं करता। जो काम एडवर्ब करता है वो काम वर्ब नहीं करता। जो काम कंजंक्शन का है वो काम इंटरजेक्शन का नहीं है। सबके अपने अपने काम है भैया, अपना अपना डिपार्टमेंट है, बटा हुआ है। मेरा जो काम है मैं करूंगा, इट इज माई वर्क, यू शुड डू योर वर्क। तुम अपना काम करो। नाउन का अपना काम बटा हुआ है। नाउन डज इट नाइसली। एडजेक्टिव को दे दिया गया है टास्क। भैया एडजेक्टिव, यस सर, यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। ओके सर, थैंक यू सर, आई विल डू इट विद डिवोशन सर। सर मैं करूंगा, अपना काम जो है मैं निष्ठा से करूंगा। जी सर, थैंक यू सर। वर्ब को एक अलग टास्क दिया गया है, एडवर्ब का टास्क अलग है, प्रीपोजिशन अपना काम करता है। शादी विवाह में देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग? हलवाई का काम क्या है?
मिठाई बनाना, खाना बनाना, वो अपना काम करता है। उसको टेंट वाले से कोई मतलब होता है क्या? हलवाई वाले को टेंट वाले से क्या मतलब है? और टेंट वाला अपने टेंट में लगा रहता है, अपना काम करता है, उसको हलवाई वाले से क्या मतलब है? जनरेटर चलाने वाला अपना जनरेटर चलाता है, उसको अपने जनरेटर से मतलब है। और आपको क्या है? शादी ब्याह में आपको केवल खाने से मतलब है। बिकॉज यू हैव नो चिंता, यू हैव नो परेशानी, यू हैव नो फिकर, यू आर नॉट एट ऑल वरीड। खेलना है, शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या करते हैं? खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दैट्स ऑल। तो बच्चों का काम है शादी विवाह में खेलना, कूदना, एंजॉय करना, खाना पीना, दैट्स ऑल। तो प्रीपोजिशन को जो टास्क दिया गया है भैया, प्रीपोजिशन अपना टास्क करता है खूब बढ़िया से, नो प्रॉब्लम। कंजंक्शन को भी कुछ काम मिले हुए हैं। कंजंक्शन प्लेज इट्स ओन रोल, कंजंक्शन अपना काम करता है। और इंटरजेक्शन हैज गॉट्स इट्स ओन टास्क टू डू, टू परफॉर्म। इंटरजेक्शन को अपना टास्क मिला हुआ है, उसके अपने वर्क हैं, वो अपना काम करता है। ही डज नॉट गो इनटू द फील्ड ऑफ कंजंक्शन, वो कंजंक्शन के फील्ड में नहीं घुसता है। आप क्रिकेट खेलते हैं, देखते होंगे, जो खिलाड़ी शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहा है वो शॉर्ट लेग पर के बॉल को पकड़ता है। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट पर खड़ा है तो पॉइंट के बॉल को पकड़ता है। कोई ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहा है तो ऑफ साइड के गेंद को पकड़ता है। विकेट के पीछे है, जिसको आप विकेट कीपर कहते हैं, तो विकेट के पीछे जो बॉल आता है उसको वो पकड़ता है। या फिर कोई थ्रो करता है उसके पास, he gathers, he catches that ball। बॉलर जो है he balls, बॉलिंग करता है। when the ball comes to him he fields it also। अंपायर जो है he does the work of umpiring, वो अंपायरिंग का काम करता है। have you seen any umpire bowling? बैट्समैन क्या करता है? वो बैटिंग करता है, उसका काम है बैटिंग करना। टू स्कोर रन्स, विकेट के पीछे भागना, रन बनाना, बाउंड्री बनाना, छक्के लगाना। और जो ऑडियंस होते हैं, जो दर्शक होते हैं पेविलियन में बैठे हुए, उनका काम क्या होता है? जस्ट टू एंजॉय करना, जस्ट टू क्लैप करना, डांस करना। वो अपने काम करते हैं। कोई भी ऑडियंस ऐसा तो नहीं होता है जो स्पेक्टेटर है, दर्शक है, वो आके बैटिंग करने लगता है। जनरली इट डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा थर्ड अंपायर होता है, वो पेविलियन में बैठा हुआ होता है, वो वहां से जज करता है। मान लीजिए वो कहां फील्ड पर आता है। तो हर गेम में उसके गेम के कुछ नियम होते हैं, उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ काम दिया गया होता है, वो उस काम को करता है। तो हर आदमी का काम बटा हुआ होता है। लाइकवाइज इन ग्रामर ऑल्सो, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे 8 जो वर्ड्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्या मजेदार वर्ड्स हैं लेकिन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction, interjection, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। कोई किसी के रास्ते में नहीं आता है। अपना अपना काम करके दे आर सेटिस्फाइड। अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। दे बिलीव इन लिविंग, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। जब हर आदमी अपना अपना काम करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, तब कोई दिक्कत नहीं होती है।
जब हम दूसरे के काम में टांग अड़ाने लगते हैं, पोक करने लगते हैं, व्हेन वी स्टार्ट पोकिंग आवर नोज, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। इसीलिए आज तक ग्रामर में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है, नेवर। वर्ड्स आर नेवर सीन फाइटिंग, वर्ड्स आर नेवर सीन कंप्लेनिंग, वर्ड्स आर नॉट सीन arguing, words are not seen going to court। कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है इन लोगों में, कभी नहीं हुआ है झगड़ा, आज तक नहीं हुआ, न होगा, न हुआ है, न होता हो रहा है, और न इनके बीच कभी झगड़ा होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन वर्क। दे ऑल वर्क, सब काम करते हैं, लेकिन अपना काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन, फिर मुलाकात होगी, जल्दी ही मुलाकात होगी। बिकॉज यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। आई बिकम सैड when I am not with you। मैं उदास हो जाता हूं जब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहता हूं। लेकिन टुडे वी हैव टू पार्ट, अब तो आज जुदा होना होगा, तो मिलने के लिए, जस्ट टू मीट, वी आर पार्टिंग। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी, बी हैंडसम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।